بڑے پیمانے پہ یہ جو ہے یہ مسئلہ اختیار کر چکا ہے یہ، اور پورا شہر جو ہے اس کی زد میں ہے، تقریباً پورا شہر اس کی زد میں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ جنوری کے مہینے میں اس نے بی ایس ایس کا پروگرام نکالا. بی ایس ایس کا مطلب رضاکارانہ علیحدگی اسکیم. اس کے لیے جو ہے اس نے یا تو ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے جو ہے تقریباً 500 جو ورکر ہیں ان لوگوں نے یہ بی ایس ایس کا وہ لیا. اس کے بعد اس کا جو ہے اس نے یہ کیا مینجمنٹ نے کہ جن لوگوں کو کور اور نان کور، جو نان کور ہے، نان کور مطلب نان ٹیکنیکل نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے اس نے کیا کیا کہ 4,500 مزدوروں کو یک قلم جنبش سے نکال دیا. تو نکالنے کے بعد ہم نے رجوع کیا تھا عدالت سے بھی کہ بھئی یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. جب رضاکارانہ کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی ہو لے یا نہ لے، لیکن اس نے جبر کیا اور زیادتی کی. ان کو 4,500 ملازمین کو جو ہے بے دخل کر دیا. کورٹ کی طرف سے کورٹ میں جو ہے اس وقت جج صاحب نہیں تھے، تو ہماری جلوس جو تھی وہ جو بے دخل کی کہتے ہیں یہ سیدھا ہم لوگ جہاں اسکاڈا ہے، یہ اس کو اسکاڈا کہتے ہیں کہ یہ سیاؤ، یہاں جو ہے ہم نے دھرنا دیا 4 دن 4 رات. تو اس میں مختلف قسم کے ٹریڈ یونین کے لوگ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، اور پاکستان کے مختلف سیاسی پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے جو ہے 4,500 مزدوروں کے بحالی کے لیے. تو اس میں صدر پاکستان نے جو ہے ایک آرڈر نکالا جس میں یہ 4,500 جو نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ ڈیوٹی پہ بحال کیا گیا، دوبارہ لے لیا ڈیوٹی پہ. تو اس کے دوسرے دن یہاں کے سی او صاحب نے جو تابش گوہر ہے اس نے ان کو یہ کہا کہ پریس کانفرنس میں کہ ٹھیک ہے میں نے صدر کے اس کے کہنے پہ جو ہے ان کو لے لیا ڈیوٹی پہ، وہ مجبوری تھی، لیکن میں یہ عمل جاری رکھوں گا. تو اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو 4,500 جس کو نان کور کہتے ہیں ان کو سرپلس پول میں ڈال دیا. سرپلس پول میں ڈال دیا. سرپلس پول کا مطلب ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، کسی وقت نکال دیں گے. ان سے ڈرائیوروں سے جو ہے گاڑیوں کی چھابیاں لے لی، گارڈ سے ان کی ڈیوٹیاں چھین لی، ان کے گن رکھ دیے، اور جو ہے بل ڈسٹریبیوٹر جو ہے ان سے بھی جو ہے ان سے کام لیا گیا، واپس لیا گیا. اب وہ سرپلس پول میں ڈال دی گئے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے کیونکہ ہم سی پی ہیں، ہمارا وہ حق ہوتا ہے، قانونی حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس کے ملازمین کے تحفظ کے لیے، ملازمت کے تحفظ کے لیے احتجاج کریں. احتجاج کرنا تو ہمارا حق ہے. اس کے لیے ہم نے پریس کلب میں جو ہے آ کے رات ہمیں مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی. تقریباً 22 دن تک ہمارے ساتھی جو ہے وہاں تحت ہمیں بھوک ہڑتال میں بیٹھے رہے، اور وہاں بھی مختلف قسم کے سیاسی لیڈران اظہار یکجہتی کے لیے آئے، اور ٹریڈ یونین بھی، اور اے پی سی جو ہے آل پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی آئے. تو اس میں یہ ہوا کہ عبدالستار عیدی صاحب جو مشہور سماجی کارکن ہے، اس نے کہا کہ یہ بھوک ہڑتال آپ دادوں میں نہ کریں، اس کو ختم کر دیں. کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں، یہ آپ کا حق ہے. تو ہم لوگوں نے بولا کہ ہمارے تو معاشی قتل کیا گیا ہمیں، 4,500 کا مطلب ہے 4,500 خاندان ہو گئے. تو اس کے لیے ہم کیا رہ گیا ابھی ہمارے لیے؟ کہہ رہے نہیں، میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں. تو اس کے لیڈ پر دادوں میں مرگ بھوک ہڑتال ختم کر کے اس کو کنورٹ کیا گیا روزوں میں، نفلی روزے رکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد ہم نے پروگرام بنایا، مختلف ریلیاں نکالی جو شہر کے مختلف علاقوں روڈوں سے جاتے رہے، تاکہ
कि हमारी आवाज़ शहरी भी सुने कि हमारे यहाँ के KSC के मजदूरों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने रुख किया यहाँ का स्काडा का, वहाँ से हम यहाँ आ गए क्योंकि हमारा हेड ऑफिस यहीं है, सब यहाँ मौजूद हैं। उसके लिए एहतजाज में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई भी यकीनदानी नहीं मिली है कि इन मजदूरों को दोबारा हम वापस ड्यूटी पे लेंगे। 4 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं मैनेजमेंट के साथ, लेकिन चारों दफ़ा जो है अपने हरदर्मी पे कायम है। कहते ये चीज़ नहीं होगी, मैं इनको सरप्लस पूल में रखूँगा और ये अपना VSS प्रोग्राम जारी रखूँगा। अभी तक तो हम एहतजाज में बैठे हैं। अच्छा उस्मान साहब, कितने दिन हो गए हैं इस मसले को? आज कितने दिन हो? 2 महीने 2 दिन हो गए तकरीबन। ये मेरे ख्याल में 62 दिन हो गए। 62 दिन हो गए। 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। सदर साहब ने बहाल कर दिया था, उसके बाद ताबश कौर साहब ने इस काम को दोबारा जारी रखा। अच्छा, 4,500 ख़ानदान, जो 4,500 मुलाजमीन, जैसा कि आप कह रही हैं, वो ख़राब हो गए, उन्होंने उनको यानी कि ख़राब करने की कोशिश की है, बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसके पसे पर्दा कोई वजह तो होगी, कोई राज तो होगा। क्या वो सारे के सारे गुनहगार हैं? और दूसरी, अच्छा ठीक है, आप जवाब दें। मैं कहता हूँ कि ये ड्राइवर जो हजरात है जिनको सरप्लस पूल में डाल दिया गया है, ये गाड़ी भी चलाते हैं, ये काम भी, टेक्निकल काम भी जानते हैं। बाकायदा जब जाते हैं साइट में काम करने के लिए, उन टेक्नीशियन वालों के साथ बाकायदा वो टेक्निकल काम भी करते हैं। तार खींचना, जोड़ना, बंद करना, इनको तजर्बा है क्योंकि कई सालों से जो है उनके साथ रहे, उनको काम करने का भी तजर्बा है। और ये हमारे जो सिक्योरिटी वो है, ये भी कई सालों से, क्योंकि बहुत से सिक्योरिटी वाले जो है फ़ौज के रिटायर्ड हैं, अपना ईमानदारी, दयानतदारी से अपना इस इदारे की खिदमत करते रहे, अपना काम करते रहे। PD जो है, जिनको बिल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, वो बिल देने का उनको बाकायदा अपने साइकिल डे तजर्बा है कि ये एड्रेस कौन सी जगह पर है, कौन से गली पर है। बाकायदा सही तरीके से बिल जो है ना इलाकों में पहुंच जाता था, कंज्यूमर को पहुंच जाता था। और लेकिन अब जो है इसने बिल लेके थर्ड पार्टी को दिए, ठेकेदारों को, जो आप देखे सुना तजर्बा किया, मतलब उनको एड्रेसों का भी सही पता नहीं, लोगों को बिल भी सही तरीके से नहीं मिले। ये आप लोग शहरी, आप लोग को पता होगा, आप लोग को बिल भी नहीं मिले होंगे। तो बात ये है कि हम कहते हैं कि भाई इनको अपने ड्यूटी पे ले, ये इदारे के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं, ये ईमानदारी, दयानतदारी से काम कर रहे थे इस इदारे का, इनसे क्यों काम नहीं लिया जा रहा है? अब उसने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी शुरू की हैं। मतलब है जो हमारे लोग जो वो 4,500 के अलावा और लोग जो इज़हार यकजहती के लिए इनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग मजदूर हैं, सब एक साथ हैं। 11,000 11,500 जो मजदूर हैं, हम सब एक साथ हैं। आज उनके 4,500 के साथ हुआ, कल दूसरे को भी साथ हो सकता है, इसलिए हम लोग सब एक है। उसने इंतकामी कार्रवाई शुरू की है, बहुत से लोगों को डिसमिस किया, बहुत से लोगों को टर्मिनेट किया, बहुत को रिन्यूअल फ्रॉम सर्विस और चार्जशीटें दी गई, सस्पेंड किया गया। उनकी 2 महीने से तनख्वाहें बंद कर दी गई। एक तो उनका माशी कत्ल हो चुका है, दूसरों का जो वो उनके साथी हैं जो KSC के और मजदूर, उनका जो है आपका तनख्वाहें 2 महीने से बंद कर दी गई। लेकिन हमारे जितने साथी मजदूर हैं, आप देख रहे हैं कि 2 महीना 2 दिन जो है कराची के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में इतना बड़ा एहतजाज कभी भी नहीं हुआ है, जो अपने हक के लिए रात दिन यहाँ रोडों पे भी पड़े हुए हैं, धूप में भी पड़े हुए हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये यहीं पे लोग बैठे हुए हैं या कि कहीं और भी इसी तरह बैठे हुए हैं? देखिए हमारा प्रेस क्लब में भी हमारा एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ भी चंद साथी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मरकज़ आपका ये बना दिया। अच्छा उस्मान साहब, दूसरा ये बताएं कि एहतजाज करना किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ हर शहरी का फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं KSC के, जिनको बरतरफ किया गया है, वो बिला वजह जिनकी बिजली के पोलों को तोड़ना, उनको नुकसान पहुंचाना, तारों को तोड़ना, और इसका जो असर है वो एक आम गरीब आदमी पे पड़ रहा है, जो कि पूरी रात जाग के बिजली न होने की वजह से
अपने बच्चों पे जो है वो पंखा मारता रहता है बेचारा, सुबह उसको काम भी करना होता है। तो ये बीच में कौन लोग हैं जो कि काम करने वालों को भी काम नहीं करने दे रहे? एहतिजाज पे बैठे, हम इस इदारे के वफादार हैं। हम कभी भी इस किस्म का, हम लोगों को कहते भी हैं कि शहरी को खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम इस शहर को रोशन देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि शहर अंधेरे में डूबे। हमने इस सिलसिले में बाकायदा इंतज़ामिया को वर्किंग पेपर भी दिया है कि भाई इस सिस्टम को, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमने बाकायदा अपना ऑफ़र किया कि हमारे यूनियन जो है, हमारे KSC के मुलाजमीन जो हैं, इस सिलसिले में आपके साथ तावन करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो लेकिन ये इसने मैनेजमेंट ने झूठे किस्म के इल्ज़ामात लगा के हमारे यूनियन को, हमारे KSC के मुलाजमीन को बदनाम करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए। अभी आप देख रहे हो कि आप लोड शेडिंग हो रही है कराची शहर बहुत ज़्यादा हो रही है ना। जब से ये मसला हुआ है फिर तो और ही ज़्यादा हो। जब वो कह रहे हैं कि मुलाजमीन काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने एहतिजाज में बैठे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम अपने एहतिजाज में बैठे हैं, आपने दरवाजे बंद कर दिए, काम पे नहीं ले रहे हो लोगों को, तो ये लोड शेडिंग कौन कर रहा है? ये हमारे हाथ में तो नहीं है। ये बटन, ये सिस्टम, ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ये इनके अफसरान होते हैं, ये मैनेजमेंट के अपने हाथ में होता है। पूरा एंड टाइम पे बिजली बंद करते हैं, लोड शेडिंग में बंद और खोलते हैं। ये कौन कर रहा है? अच्छा उस्मान साहब, अभी आपके ख्याल में ये जो 2 महीनों की कोशिश आपने तगदो की, अपना सब कुछ छोड़ के अपने हक के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और कितने अरसे में निकलेगा? कोई इंसाफ मिलेगा? कोई तवक्को है आपको? हम इंसाफ की तवक्को